A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। इसके साथ वीडियो के अंत में हमारे पास होंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी, जिनको आप अवश्य ही ध्यान से देखिए और उत्तर करने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स 18 फरवरी 18 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी हिस्टोरिकल facts की। The very first fact here is associated with 1486 when famous Bhakti saint Chaitanya Mahaprabhu was born। अर्थात प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। He was one of the greatest saints of the Bhakti movement, popularly known as Gauranga Mahaprabhu also। उनका जन्म 1486 AD में हुआ था at नवद्वीप इन वेस्ट बंगाल इन अ ब्राह्मण फैमिली। वह वैदिक फिलॉसफी अचिंतया भेद अभेद के संस्थापक थे एंड ही आल्सो फाउंडेड द गौड़िया वैष्णविज्म। Bhakti movement started from South India in the form of Vaishnavite and Shaivite sects, commonly known as Alvars and Nayanars respectively। Early 16th century was marked by the rise of Bhakti saint Sri Chaitanya Mahaprabhu in East India. He was a Vaishnavite saint and a strong follower of Lord Krishna. In fact, उनके भक्तों के अनुसार he himself was considered as an incarnation of Lord Krishna। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम, करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। वह एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, परंतु उन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा करी और सभी के लिए समानता पर जोर दिया। उनके अनुसार सच्ची पूजा प्रेम और भक्ति में ही निहित होती है। भक्ति आंदोलन को कठोर कर्म कांडों और धार्मिक प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए याद किया जाता है। Chaitanya Mahaprabhu is also known to have revolutionized and reoriented the Bhakti movement। उन्होंने सभी को दिया था the message of Hari Bol, that was a popular slogan used by him to his disciples, and he did this through Sankirtan Mandali। These were organizations and these were setups जहां devotees used to chant, sing and dance। Through these mandalis, the chanting of slogan Hari Bol and combined dance and chant, Mahaprabhu brought together people from various castes, creeds, places and gender together। इनका message या जिसे कह सकते हैं गौड़िया स्कूल ऑफ थॉट is now widely propagated across the world through ISKCON movement। और अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा अगला फैक्ट है आज की दिनांक से संबंधित। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द ईयर 1836 व्हेन सेंट रिलीजियस लीडर इन द 19th century Bengal, the very popular रामकृष्ण परमहंस was born। अर्थात 19वीं सदी के बंगाल में संत और धार्मिक नेता रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। Sri Ramakrishna Paramhans, who was born as Gadadhar Chattopadhyay, was an Indian Hindu mystic saint and religious leader from the 19th century Bengal। वर्ष 1855 में Ramakrishna was appointed as the priest of Dakshineshwar Kali temple, which had been established by well-known philanthropist, the queen of Jan Bazar, known as Rani Rashmani। वह किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन में विश्वास नहीं रखते थे और he always emphasized that the realization of the existence of God is the supreme purpose for all living beings। उनके लिए various religions were only a means to achieve the absolute, which is the universal God। In 1875, Ramakrishna met the influential Brahmo Samaj leader Keshab Chandra Sen। तब तक केशव चंद्र सेन ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी एंड ही हैड ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम द आदि ब्रह्मो समाज। फॉर्मरली केशव हैड बीन कंप्लीटली रिजेक्टिंग आइडोलेट्री, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आके
He accepted Hindu polytheism and he established the new dispensation अर्थात नवा विधान, एक religious movement that was based on the principles of Ramakrishna Paramhans जो थे the worship of God in the form of mother and all religions are true. रामकृष्ण ने देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करी और उनके साथ एसोसिएशन में he worked towards propagating his message of universal love and peace. वह स्वामी विवेकानंद से भी मिले जो उनसे इतने प्रभावित हुए that later स्वामी विवेकानंद became the most well known and the most ardent disciple of Ramakrishna Paramhans. In fact, रामकृष्ण मठ जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर मोनेस्टिक्स एंड हाउसहोल्ड डिवोटीज की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने ही करी थी और इसके बाद रामकृष्ण मिशन भी क्रिएट की गई थी टू प्रोवाइड चैरिटी, सोशल वर्क एंड एजुकेशन टू पीपल हु आर इन नीड. और अब आइए देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट विच इज एसोसिएटेड विद 1894 जब पॉलिटिशियन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशलिस्ट रफी अहमद किदवई वाज बोर्न अर्थात राजनीतिज्ञ, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और समाजवादी रफी अहमद किदवई का जन्म हुआ था. रफी अहमद किदवई was a very well known politician and independence activist who is sometimes described as an Islamic socialist also. उनका संबंध था from United Provinces जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है in the northern India. अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में भाग लेने वाले किदवई ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था. वर्ष 1929 में किदवई was elected as the secretary of the Swaraj Party in the Central Legislative Assembly. He had utmost loyalty and a very close political relationship with Motilal Nehru. The Indian National Congress made a demand of Purna Swaraj on 19th December 1929 और महात्मा गांधी ने भी लॉन्च किया था अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन जनवरी 1930. इन सभी डेवलपमेंट्स के मद्देनजर किदवई ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इंस्पायर्ड बाय द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ही आल्सो जॉइंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. 1937 में किदवई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत की कैबिनेट में राजस्व और जेल के मंत्री बने. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रणाली को खत्म करने वाला पहला प्रांत बन गया. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन 1947, किदवई became India's first minister for communication. Nehru entrusted Kidwai with the portfolio of food and agriculture at a time when there was food rationing in the country. The Rafi Ahmad Kidwai Award को भी स्थापित किया गया in 1956 by the Indian Council of Agricultural Research to recognize Indian researchers in the agricultural field. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है 1927 के साथ when famous Indian sitar player अब्दुल हलीम जाफर खान was born अर्थात प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान का जन्म हुआ था. अब्दुल हलीम जाफर खान एक बेहद प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक थे और he is known for his unique style called जाफर खानी बाज. He described this as a synthesis of precision in technique and systematic thought. उनके पिता जाफर खान भी एक प्रसिद्ध वोकलिस्ट, सितारिस्ट और बीनकार थे. Abdul Halim is known to have introduced popular Carnatic ragas such as Kirvani, Kanakangi, Latangi into sitar playing. उनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सराहा गया जैसे कि पद्म श्री अवार्ड इन 1970, पद्म भूषण इन 2006 एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक इन 1987. और अब क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है सितार वादकों की तो कुछ नाम यहाँ लेने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं बिकॉज इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा म्यूजिशियन जुड़ा है किस म्यूजिक यंत्र से. तो आप याद रखिए कि इंडिया के फेमस यानी कि प्रसिद्ध सितार वादकों के नाम हैं रविशंकर, विलायत खान, अनुष्का शंकर और निखिल बैनर्जी.
तो अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट और ये संबंधित है 1946 के साथ, जब द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी RIN, जिसको कि रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी बुलाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी एट द बॉम्बे हार्बर। द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, या जिसे हम बॉम्बे म्यूटनी भी कहते हैं, इट refers to a total strike and subsequent revolt by Indian sailors of the Royal Indian Navy on board ship and shore establishments at the British Harbour on 18th February 1946. इसके पश्चात ये आंदोलन ब्रिटिश भारत के अन्य इलाकों में भी फैल गया था, और इसकी मुख्य वजह क्या थी? तो मेन रीजन था कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेलर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। भारतीय सेलर्स को उनके ब्रिटिश कमांडरों द्वारा बुरा व्यवहार फेस करना पड़ता था, और नौसेना में भारतीयों और ब्रिटिश नाविकों के वेतन, रहने की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में बहुत विभिन्नता थी। बंबई बंदरगाह में हड़ताल शुरू हुई। On 19th February, a naval central strike committee was created with leading signalman Lieutenant MS Khan and petty officer telegraphist Madan Singh elected as the president and vice president respectively. The strikers were inspired by the INA trials and the personality of Subhash Chandra Bose. Soon, the strike evolved into an open revolt with many cities joining the Bombay sailors. Sailors from Karachi, Calcutta, Pune, Vizag and Kochi joined, involving 66 ships and shore establishments. The rebels also found big support from the Royal Indian Air Force men from Bombay and from the Gurkhas in Karachi, जो अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, परंतु they completely refused to fire at the strikers. सांप्रदायिक तर्ज पर देश के इम्पेंडिंग विभाजन के बावजूद भी सेलर्स ने धर्म और क्षेत्र की रेखाओं को लांग के एक यूनाइटेड स्ट्रगल सामने रखी। द रिवोल्ट हाउएवर फेल्ड टू सी सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन लीडरशिप, जिन्हें लगा कि आजादी के इतने नजदीक आके इतना बड़ा रिवोल्ट मे नॉट बी गुड फॉर इंडिया। Only the Communist Party of India and the INC's Aruna Asaf Ali openly supported the sailors. The mutiny came to an end with the intervention of Sardar Vallabhbhai Patel, and the mutineers surrendered on 23rd February 1946. Parinam Swarup, a total of 7 sailors and 1 officer was killed. 476 sailors were discharged as a result of the mutiny, परंतु they were not taken into the Indian or Pakistani navies after independence. तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं चल के कि कौन से क्वेश्चंस फिर हमारे सामने है यहाँ। तो सबसे पहला सवाल है कि who was the founder of the Gaudiya Vaishnavism, अर्थात गौड़ीय वैष्णविज्म के संस्थापक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं कि ए रामकृष्ण परमहंस, बी चैतन्य महाप्रभु, सी स्वामी विवेकानंद, या फिर डी श्री औरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, अर्थात रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, ए श्री औरबिंदो, बी स्वामी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी देवेंद्रनाथ टैगोर। The next question is, who was India's first Minister of Communications? भारत में पहले संचार मंत्री कौन बने। ऑप्शन यहाँ कुछ ऐसे दिए गए हैं कि ए है आसफ अली, बी है तेज बहादुर सप्रू, थर्ड ऑप्शन अर्थात ऑप्शन नंबर सी है रफी अहमद किदवई, और डी ऑप्शन है भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अब्दुल हालिम जाफर खान एसोसिएटेड, अर्थात अब्दुल हालिम जाफर खान जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ऑप्शंस है, ए सरोद, बी सितार, सी बांसुरी, या डी तबला। और अगला सवाल है, व्हेन डिड द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी अर्थात RIN बिगिन, यानी कि द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी RIN की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ कुछ ऐसे हैं कि ए है 1946, बी है 1948,
सी है 1945 और डी है 1947। अब इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को दोस्तों इससे बहुत लाभ मिला होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिए। इनफैक्ट अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे अवश्य शेयर कीजिए। हमारे सभी क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।